Hello friends, welcome to the second part of chapter number 8, Motion of grade 9th. In the previous video, we have discussed up to difference between distance and displacement. Now, in this module, we are going to learn about types of motion, that is, uniform and non-uniform motion. Now let us consider that an object is moving along a straight line. Let us assume that the object has covered 5 meter distance in time 1 second, 10 meter distance in time 2 seconds, 15 meter distance in time 3 seconds, 20 meter distance in time 4 seconds, 25 meter distance in time 5 seconds, and 30 meter distance in time 6 seconds. Now, if you observe that the object has covered 5 meter distances in each seconds. As the object covers equal distances in equal intervals of time, such a motion is said to be uniform motion. Example of such motion is car moving on a highway. फ्रेंड्स, मोस्टली जब कार हाईवे पे ट्रेवल कर रही होती है तो उस वक्त उस कार के रास्ते पे कोई भी ऑब्स्टेकल या कोई भी अनवांटेड रीजंस नहीं होते जहां पे उसे स्टॉप करना हो या अपनी स्पीड रिड्यूस करनी हो. उन केसेस में कार हमेशा इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन. So in our day-to-day life, we come across motions where object also covers unequal distances in equal intervals of time. Such a motion is called non-uniform motion. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, then such motion can be considered as non-uniform motion. So friends, जब हम लोग जॉगिंग कर रहे होते हैं या जब हम सिटी रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो उस वक्त हमें कई बार अपनी गाड़ी की स्पीड को रिड्यूस करना पड़ता है. इट्स बिकॉज कई बार ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, कभी हमें टर्न लेना होता है, कभी कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, कभी ट्रैफिक सिग्नल लाइट रेड हो जाती है, जिस वजह से हम इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में नहीं ट्रेवल कर पाते हैं और ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. असल जिंदगी में यूनिफॉर्म मोशन बहुत ही कम देखने मिलता है. मोस्टली हम जितने भी मोशंस देखते हैं वो सारे के सारे नॉन यूनिफॉर्म मोशंस होते हैं. नाउ लेट अस सी एन एक्टिविटी. द डेटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स A and B. Examine them carefully and state whether the motion of the objects is uniform or non-uniform. सो यहां हमें एक डेटा दे दी गई है जिसमें कुछ टाइम इंटरवल्स के साथ साथ ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी ने कुछ कुछ डिस्टेंसेस कवर किए हैं. नाउ इफ यू लुक एट डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट ए, देन वी कैन से ऑब्जेक्ट ए हैज कवर्ड 10 meter distance at 9:30 a.m., 20 meter distance at 9:45, 30 meter distance at 10 a.m., 40 meter distance at 10:15, 50 meter distance at 10:30, 60 meter distance at 10:45 and 70 meter distance at 11 o'clock. यानी हर 15 मिनट में ऑब्जेक्ट ए जो है वो 10 मीटर जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है. सो इससे हमें क्लियरली पता चलता है दैट ऑब्जेक्ट ए इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन. सेम वे इफ यू लुक एट डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट बी, तो ऑब्जेक्ट बी जो है उसने फर्स्ट टाइम इंटरवल में 12 मीटर जितना डिस्टेंस कवर किया है. 15 मिनट्स बाद उसने 19 मीटर जितना डिस्टेंस कवर किया. Again after 15 minutes it has covered 23 meter distance. At next 15 minutes it has covered 35 meter distance. फिर 37, फिर 41 और फिर लास्ट में 44. That means equal time interval में ऑब्जेक्ट बी जो है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है.
सो इस तरह के मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. So as shown in above table, object A traveled equal distances in equal interval of time. Hence, such a motion is called uniform motion. Whereas object B traveled unequal distances in equal interval of time. Hence, such a motion is called non-uniform motion. Measuring the rate of motion. Now, look at the situations as given in figure. Say for example, if you look at the TV screen while watching a cricket, you can see bowling speed of a bowler is given in kilometer per hour. जब हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें कुछ फास्ट बॉलर्स होते हैं और कुछ स्लो बॉलर्स होते हैं. जब कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग करने आता है तो उनकी बॉलिंग स्पीड को स्क्रीन पे दिखाया जाता है. समटाइम्स द डेटा शोज 140 किलोमीटर पर आवर और 143 और 135 और 145. ये स्पीड जो है ये हर इंटरवल पे चेंज होती रहती है. सिमिलरली लुक एट फिगर नंबर 2 which shows a sign board on the road having speed limit of 50 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर. आपने ऐसे साइन बोर्ड्स ज़्यादातर स्कूल वाले एरियाज़ के रोड पे देखे होंगे, जहाँ कहीं आसपास में स्कूल हो या हॉस्पिटल्स हो. ऐसे रोड पे इस तरह के साइन बोर्ड्स मोस्टली बने हुए होते हैं जिस पे गाड़ियों की स्पीड लिमिट लिखी जाती है. दिस इज़ बिकॉज स्कूल्स या हॉस्पिटल्स जो हैं वो बहुत ही क्राउडेड प्लेसेस होती हैं. वहाँ बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, जिस वजह से अगर हाई स्पीड से कोई व्हीकल वहाँ से गुजरता है तो किसी का एक्सीडेंट हो सकता है. सो इन दोनों एग्जाम्पल्स में एक चीज़ आपने कॉमन नोटिस की होगी जो है स्पीड. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पीड. Different objects may take different amounts of time to cover a given distance. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बड़े व्यक्ति से आप कह दो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाओ तो वो जल्दी चला जाएगा, लेकिन वही एक छोटे बच्चे को अगर हम कहते हैं तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके उस जगह पे पहुंचेगा. दोनों के मोशन में एक चीज़ का डिफरेंस है, वो है कवरिंग द डिस्टेंस विद डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. जो बड़ा व्यक्ति होगा वो उस डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लेगा, लेकिन जो छोटा बच्चा होगा वो उसी डिस्टेंस को कवर करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगाएगा. सो फ्रॉम दिस वी आर एबल टू जज दैट एल्डर पर्सन इज फास्टर कंपेयर्ड टू अ स्मॉल बेबी. सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली. सो दिस इज कॉल्ड स्पीड. The rate at which objects move can be different. Also, different objects can move at the same rate. One of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out distance traveled by the object in unit time. This quantity is referred to as speed. So, speed can be defined as the ratio of distance traveled by an object upon टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस. स्पीड को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमने ऑलरेडी आगे पढ़ लिया डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स. सो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड विल बी मीटर पर सेकेंड, दैट इज एम अपॉन एस और एम एस रेज टू -1. सिंबॉलिकली इस यूनिट को आप इस तरह से लिख सकते हैं, आइदर यू कैन राइट डाउन एम एस रेज टू -1 और एम अपॉन एस. स्पीड के और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों की या ट्रेन की, या फिर कोई भी ऐसे बड़े व्हीकल की स्पीड अगर हमें फाइंड करनी है तो हम उसे किलोमीटर पर आवर में फाइंड करते हैं. Also, the smallest unit of speed is centimeter per second. So, these are some of the units of speed of an object.
Now the speed of an object need not be constant, because in most cases objects will be in non-uniform motion. Therefore, we describe the rate of motion of such objects in terms of their average speed. So what is average speed? The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. So friends, अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है तो उस समय उसने जितने भी डिस्टेंसेस कवर किए हैं उन सभी डिस्टेंसेस का टोटल और सारे ही टाइम इंटरवल्स का टोटल लेके हम उन दोनों का रेशियो ले लेंगे, जिससे हमें उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड मिल जाएगी. If an object travels a distance s in time t, then its speed is denoted by symbol v and is given by the formula v is equal to s upon t. Now let us understand this by an example. A car travels a distance of 100 km in 2 hours. Its average speed is 50 km per hour. The car might not have traveled at 50 km per hour all the time. Sometimes it might have traveled faster and sometimes it might have traveled slower. So, average speed can be considered as total distance traveled by the object upon total time taken to travel that distance. So, average speed of an object can be taken as 32 upon 6, which is equal to 5.33 meter per second. Speed with direction. The rate of motion of an object can be comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर उसकी स्पीड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है तो वो क्वांटिटी बन जाती है वेलोसिटी. इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन. सो एक्चुअली में स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी विच ओनली हैज अ मैग्नीट्यूड, बट अगर हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ जोड़ देते हैं तो वो क्वांटिटी बन जाती है वेलोसिटी. Hence we can say the quantity that specifies both, that is magnitude as well as direction of motion, then it is called velocity. Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कार इज मूविंग विथ 60 किलोमीटर पर आवर तो वो बन जाती है उसकी स्पीड. लेकिन अगर मैं कहता हूं कार इज मूविंग विथ 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन तो वो क्वांटिटी बन जाती है वेलोसिटी ऑफ द कार, क्योंकि यहां पे मैंने डायरेक्शन को भी मेंशन किया है अलोंग विद द मैग्नीट्यूड. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल. किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या तो फिक्स्ड रह सकती है या तो वो चेंज होती रहती है. इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड as well as direction of motion. When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. So जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा होता है वो भी वेरिएबल स्पीड मतलब चेंजिंग स्पीड के साथ, तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड को हम उसकी एवरेज वेलोसिटी मान सकते हैं. सो फ्रेंड्स, जस्ट लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यहां पे हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को भी उसी तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेयर एज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अगर दोनों ही क्वांटिटीज का एक ही डायरेक्शन में हम मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं तो वो सेम आएगा. से फॉर एग्जांपल, इफ अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स वेलोसिटी विल बी ऑल्सो 60 किलोमीटर पर आवर. बट मान लो अगर कार ने टर्न करके डायरेक्शन चेंज कर दिया तो मे बी उसकी स्पीड जो है वो ऐड होती जाएगी बट वेलोसिटी में डिक्रीज. So,
velocity depends upon both magnitude as well as direction, and we can say it is a vector quantity. It is calculated in the same way as we calculate average speed. So friends, एवरेज वेलोसिटी जो है हम उसे बिल्कुल एवरेज स्पीड की तरह ही कैलकुलेट कर सकते हैं. मान लीजिए अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटीज दी गई हैं. से फॉर एग्जांपल इनिशियली the object was moving with some 30 km per hour speed, and after some time its final velocity became 80 km per hour. तो ऐसे सिचुएशन में हम उन दोनों वेलोसिटीज का एवरेज निकालने के लिए दोनों को ऐड कर सकते हैं, and then we can divide them by 2. This can also give me the average velocity of that object. So average velocity is equal to initial velocity plus final velocity upon 2. Mathematically we can represent it in the form of equation, that is V average is equal to U plus V upon 2, where U is initial velocity and V is final velocity of an object. Here SI unit of velocity will be also meter per second. So friends, speed और velocity के बीच में जो difference है वो सेम टू सेम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस की तरह है. Now let us see what are the points of difference between speed and velocity. Speed is defined as ratio of distance traveled by a body in a unit time, whereas velocity is defined as ratio of displacement of a body upon time. Speed is a scalar quantity that does not tell us the direction of the motion of body. It only depends upon magnitude of the distance traveled. Velocity is a vector quantity that tells us speed and direction of motion of the body. Speed is always positive, whereas velocity can be positive and negative depending upon the direction of motion. During the circular motion, the average speed does not become zero after completing one round. यानी जब हम एक सर्कुलर ट्रैक पे घूमते हैं और जिस पोजीशन से हमने स्टार्ट किया था वहां से गोल घूम के दोबारा उसी पोजीशन पे जब हम आते हैं तो स्पीड जीरो नहीं होती. हालांकि अगर वेलोसिटी में आप जिस पॉइंट से शुरू करके उसी पॉइंट पे सर्कुलर ट्रैक पे वापस आ जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, जिस वजह से एक राउंड कंप्लीट करने पर वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. So this brings us to the end of second part of chapter number 8, motion of grade 9th. In the next video, we will discuss about other quantities like acceleration, as well as we are also going to discuss about equations of uniform accelerated motion and uniform circular motion.